chemical bonding. So here we are talking about chemical plus bonding. So first question is, what is this chemical? केमिकल मतलब आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड विथ एटम्स आयन कंबाइंड जो कर रहे हो, सम प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इजंट इट? एक होगा फिजिकल बॉन्डिंग. फिजिकल बॉन्डिंग मान लो आपने एक दो चीज को चिपकाया, सपोज मान लीजिए आपने एक मैग्नेट लिया और एक आपने ऐसे मैग्नेटाइज मटेरियल ले लिया, मे बी आयरन, आपका वो धीरे जाके चिपक जाता. तो बॉन्ड मतलब एक चिपक जाना हो रहा है, उसको आप डिटैच कर सकते हो, है ना. सो केमिकल बॉन्डिंग इज समथिंग रिलेटेड विद द केमिकल प्रोसेस. सो केमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करना है इसको, एंड केमिकल प्रोसेसेस आर बेसिकली इरिवर्सिबल. तो यहां पर रिवर्सिबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं रिवर्सिबल नहीं हो सकते, बट यहां पर सम सॉर्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस शुड गो ऑन, एंड दिस इज बॉन्डिंग. सो देयर आर समथिंग व्हिच आर गोइंग टू कंबाइन. So bonding implies combining. अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन है, why do elements combine? Why do elements combine? अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज to achieve stability. जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि हम लोग स्टेबिलिटी को पा सके. ओके, तो स्टेबिलिटी को पाना है तो कैसे स्टेबिलिटी आएगा? सेकेंड क्वेश्चन है, अगर सब कुछ हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए तो कब तक कंबाइन करें? So what is the criteria of stability? मतलब up to what level we should combine? So what is the criteria? What is the criteria? छोटे छोटे क्वेश्चंस और इसी के आंसर से आपको समझ में आ जाएगा. Criteria for stability. अब criteria for stability के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? Next question should be, how to achieve this stability? How to achieve this stability? How to achieve this stability? So these are some basic questions that should be answered before we start with what is covalent bond, what is ionic bond. So this will give you one thinking aspect कि भाई ऐसे बॉन्डिंग क्या क्या, मतलब क्यों अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बनते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया इज, वी नो दैट फ्रॉम नेचर वी नो दैट noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, etc. ये लोग हैं बस अभी तो, etc. क्या आगे अभी मिलना बाकी है, पर ये अभी एक है. These are basically of group 18 of periodic table. तो अभी आप नहीं पढ़े फिर भी आपको पता होना चाहिए. Are very stable, and stability का मतलब ये होता है chemically. We are talking about chemically. That is, they are not going to react easily. In fact, helium, neon, argon का तो कोई कंपाउंड ऐसे स्टेबल है ही नहीं. क्रिप्टॉन का भी नहीं है, जिनॉन का है, और रेडॉन रेडियोएक्टिव होता है. So we are talking about chemically they are very stable, or I can say another word में inert, or inert मतलब they are non-reactive. अब what is that thing? The electronic configuration मतलब how electrons are arranged in that thing
in these show that there are either two, that is helium, or 8 electrons. यहां पे आप मान लो नियन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा in their valence shell. In their valence shell. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है कि या तो 2 हो या तो 8 हो उसके बैलेंस शेल में, तो वो ऑटोमेटिकली पहले हमें दिखा ये स्टेबल है, एनालाइज किया तो समझ में सिर्फ या तो 2 है या तो 8 है. इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 या 8 प्रोवाइड द स्टेबिलिटी. ओके, सो वी शुड फर्स्ट राइट, since chemical properties depend upon the electronic configuration of that element, इसका मतलब क्या हो गया? therefore it was proposed that elements can achieve stability if they obtain this configuration, if they achieve this configuration. So this is the criteria. So these elements must combine so as to achieve the electronic configuration which corresponds to the noble gas. Okay, so we can say this. So elements combine to achieve the noble gas configuration of next nearby noble gas. Clear? Octet rule. It states that element combine so as to achieve either duplet, means 2, or octet, that is 8 electrons in their valence shell. So they can do so by different methods. That is another aspect. We will talk about octet rule later on कि कहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है. जब हम लोग प्योरिटी टेबल पढ़ रहे होंगे तभी भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. अभी इतना समझ आप लीजिए. That means give an example. Suppose helium
is 2, neon is 2,8. ठीक है. आर्गन का होता है 18, 288. क्रिप्टन ये होता है 36, 2, 8, 18, 8. ठीक है. ज़ेनॉन ये 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 8, 2, 8, 18, 18, 8. यू कैन सी हर जगह पर लास्ट वाले में आपको इधर या तो 2 है या तो 8 है. अब देखो सोडियम ये है 11, 281. ये हमेशा क्या चाहेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा. तो हमेशा सोडियम जो बनना चाहता है वो बनना चाहता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये बन जाएगा 28. दिस इज ऑक्टेट स्टेबल. ठीक है. कैल्शियम 2, 8, 8, 2, 20 हो गया. 2, 8, 10, 8, 2. ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसको चाहेगा वो दे काम खत्म करे. दैट इज वाई कैल्शियम क्विकली कन्वर्ट्स इनटू Ca2 प्लस टू फॉर्म 288 and 2 electrons are evolved. So that is why you can see this कि ऑक्टेट रूल जैसा बता रहा है वैसे ही हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या तो दे दे या तो ले ले. F27 एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा F-28. तो अगेन ये चीज, इसीलिए F हमेशा F- के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है. इज द पॉइंट क्लियर? सो वी कैन से टू attain stability, atoms tend to combine chemically by redistribution of electrons in the outermost shell, in the outermost shell or called as valence shell, or it is also called as valence shell. Outermost shell also called as valence shell. So that each is left with a stable electronic configuration. That is duplet or octet.
Okay, number 2 point. Cause of chemical combination. Cause of chemical combination is the tendency of elements to acquire the nearest noble gas configuration in their outermost orbit and become stable ठीक है. Another thing, straight from the book, what I'm talking about is definition of chemical bond. So देखिए, a chemical bond may be defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to maintain stability. This is the definition that we have to write. Okay. So next question is, ठीक है, मान लिया ये आपका, this is the point. How to achieve this? So the question that we have asked before also. How? आपने बोल तो दिया कि भाई मुझे नोबल गैस पहुंचना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचना है. How to achieve this stable gas configuration? How to achieve this noble gas configuration? How to achieve this noble gas configuration या inert gas configuration? या stable configuration या octet duplet कैसे पाया जाए भाई? So we should remember there can be three methods of doing so. There are three methods. The third method by which it can be achieved is again sharing of electrons. This is also sharing of electrons
but here special type sharing हो रहा है here, but in this only one of the atom of the contributing या combining atom, जो भी आप बोलो, combining atom shares, only one of the combining atom shares the electron pairs. ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सो इस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? दिस इज बेसिकली, this type of bond will be called as ionic bond. This will be called as covalent bond. And तो थर्ड वाला जो है सो बोलते हैं कोऑर्डिनेट और also called as dative. Coordinate or dative bond. Coordinate or dative bond. So these three are the different categories जो हमें बॉन्ड के बारे में या डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं. So they are the ones, these are the 3 methods by which an element can achieve the inert gas configuration. Okay? Now, let us first talk about ionic bond. So what is this ionic bond? Ionic bond. They are also called as electrovalent bonds, or it is also called as electrovalent bonds. So इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में होता क्या है? देखो, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो व्हाट इज आयनिक. आयनिक बॉन्ड, एज द नेम सजेस्ट, दे आर फॉर्म्ड बाय आयंस. और आयंस जो होते हैं वो कैसे आते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो पहला चीज, आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच कंटेन्स व्हाट? विच कंटेन्स ions. So ions are basically what? They are charged particles. They are charged particles. अब अकॉर्डिंगली चार्ज आपका 2 प्रकार से हो सकता है. या तो चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन. पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं? CATION, कैटायन. इसको क्या बोलते हैं? एनायन. दिस इज कॉल्ड एज कैटायन. दिस इज कॉल्ड एज एनायन. So how they are formed? So they are formed by loss of electrons.
they are formed by gain of electrons. Okay, तो कैसे होगा? For example, Na gives Na plus electron. You can see मैंने पहले बताया था, it is 281. 11 होता है एटॉमिक नंबर्स का, इसका भी 11 है, पर एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जा चुका है. वेट, पोटेशियम 19 होता है, 2, इसका क्या होगा? 2 8 8 1, और ये क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन दे के फटाक से क्या करेगा? 2 8 8 बनाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन. तो एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही क्या होगा? यहां पर एक K प्लस ऐसा बन जाएगा. चार्ज कंजर्व होगा, याद रखना. यहां पे क्या हो रहा होगा? एग्जाम्पल ले लो, F प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव F माइनस. ये 2,7 2,8. Cl plus electron will give Cl minus. This is 17. This is 17. This can be written as 287. This will be 288. तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. तो अगर नेगेटिव को ऐड करोगे न्यूट्रल में तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल आपका नेगेटिव ही हो जाएगा ना. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,6. अब इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म O2 माइनस. अगेन ये 8 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. दिस इज 2 8 स्टेबल. मानो नाइट्रोजन 2,5 इसका 7 होता है. अब इसमें हमें कितना जोड़ना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तभी तुम पहुंच पाओगे 8 पे. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 3 माइनस चार्ज जोड़ रहे हो, यानी 3 माइनस हो जाएगा. दिस विल बी 2,8. सल्फर, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. सल्फर 2 8 2 8 6 होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा. यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो 2 माइनस चार्ज आ जाएगा 2 8 8. So this is how cation, that is anion and cation, is formed. Clear है? So in this compound, in this compound we are having either positive charge ion, that is cation, or negative charge ion, that is anion. Okay, now ये लोग कौन होंगे जो बना रहे होंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो बनाएगा. तो ये लोग will be formed by electropositive elements जो आप देख रहे हो ऊपर. और यहां पे क्या होगा? will be formed by electronegative elements. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मोस्टली दैट इज नॉन मेटल्स. अब यहां पे मेटल्स हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, वो बात की बात है, बट दिस इज हाउ इट इज देयर. क्लियर? ओके, अगेन, so
what is ion? Straight from the text. Let us talk about text. An ion is a charged particle, is a charged particle the charged particle which is formed due to the gain or the loss of one or more electrons by an atom. Next point. The cation and the anion being oppositely charged attract each other and form a chemical bond. Clear? Since this chemical bond formation is due to the इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज के कारण से जो हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction electrostatic force of attraction between a cation and an anion, between a cation and an anion it is called as an electrovalent or an ionic bond So, clear? So definition वाइज क्लियर हो रहा है. So अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट यू विल राइट. सो डेफिनेशन वाइज अगर आपसे पूछता है
definition of electrovalent compounds. Electrovalent और ionic compounds, और जो भी आयनिक बोले कोई मतलब नहीं है, सेम ही है, अभी तक आपने सीख लिया है. What you should write, फटाफट लिख लीजिए. The chemical compounds formed the chemical compound the chemical compounds formed as a result of the transfer of electrons from one atom of an element to one atom of another element, one atom of another element, one atom of the other element, another element, are called ionic or electrovalent compounds. Ionic or electrovalent compounds. ठीक है. एक और टर्म आपका आता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो इसको क्या कहते हैं, देखिए. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons that an atom of an element loses or gains to form an electrovalent bond is called its electrovalency. Okay, so what does this mean? For example, since Na loses one electron to form Na plus electron, so electrovalency of Na equals to 1. Now, अगर Al lose करता है 3 इलेक्ट्रॉन to form Al3 plus 3 electrons, तो electrovalency of Al
will be equals to 3. Since मान लीजिए ऑक्सीजन gains 2 electrons to form O2 minus, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हो जाएगा ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2. तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोवैलेंसी को कंप्यूट कर सकते हो. इसका नाम दे दिया गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन या तो वो ले रहा है या तो वो दे रहा है. इज इट क्लियर? तो आज तो क्या क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ा. स्टेबिलिटी आता है नेचर वाइज, हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर ड्यूप्लेट या ऑक्टेट होता है तो नोबल गैसेस की तरह वो कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी पा सकता है. तो अब बात उठता है कि कैसे पा सकता है. हाउ टू अचीव दिस कॉन्फ़िगरेशन? देयर आर 3 मेथड्स. वन मेथड इज कंप्लीट ट्रांसफर, यानी पूरा पूरा दे दो. दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट ट्रांसफर विल रिजल्ट इन आयन, सो दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. दूसरा और तीसरा जो होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दोनों में शेयरिंग होता है. कोवेलेंट में जैसे मैंने आपको एक दिया, आपने मुझे एक दिया, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे दोनों लोग शेयर कर रहे हैं. कोऑर्डिनेट में कोई एक ही शेयर करता है. फॉर एग्जांपल आप शेयर करते हो अपने सबसे छोटे भाई से, वो नहीं कर सकता, वो नहीं दे सकता, तो यू आर शेयरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. That is the case of coordinate or dative bond. Then we started with ionic bond. Ionic bond में हमने पढ़ा कि यहाँ पे आयंस के कारण से होते हैं, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है. दो प्रकार के आयंस होते हैं, cations and anions. Cations are basically formed by electrovalent compounds, electropositive compounds like electropositive elements like metal हो गया, हाइड्रोजन भी हो सकता है. एंड अगर हम लोग बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नेगेटिव चार्ज लेके आपका एनाइन बनाते हैं, एग्जांपल कार्बन हो गया C4 माइनस, रेयरली बनाता पर ऑक्सीजन O2 माइनस बनाता है, फ्लोरीन F माइनस बनाता है, एंड सो ऑन. We have taken so many examples and then we have taken some straight from the book. What should be the definition till now? Okay, so we have completed electrovalency. In next class we will be talking about conditions of formation of electrovalent or ionic bond. And then we will draw how to draw the structures of some electrovalent compounds. Okay.